Hello young physics learner, welcome back to my class. This is Bhavna physics class and today I am going to explain you friction. So this one is the fourth topic and afterward banking of rod and pulley. These are the derivation based topic. Pulley is basically on numericals. Okay, so that friction, as I told earlier, it is a very descriptive and theoretical topic. You need to understand about friction because in this chapter, in Newton's laws of motion, you will solve some numericals that are based on the equilibrium of forces which I described earlier, and under the equilibrium of forces you will observe that in many kind of numericals there are the presence of frictional force. So you must know what is frictional force. So first one is the term that is important here is contact. तो ऑब्वियसली कांटेक्ट हमेशा टू बॉडीज़ के बीच में होता है. सो अगर हम कांटेक्ट की बात कर रहे हैं तो सेकेंड मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग है टू बॉडीज़. सो दैट फर्स्ट वन कांटेक्ट होना चाहिए, सेकेंड वन टू बॉडीज़ होनी चाहिए, तो फ्रिक्शनल फोर्स की एग्जिस्टेंस है. फ्रिक्शनल फोर्स जैसा कि आपका +1 में क्वेश्चन आता है दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज़ द नेसेसरी एवल. ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पूछा जाता है जो थ्योरेटिकल है पूरा और आपको एक्सप्लेन करना होता है. उससे पहले आपके कुछ एग्जाम्पल्स जो फ्रिक्शनल फोर्स को शो करते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक हियर. The status friction between these boots and the snow allows this person to stand and shovel snow. When you rub your hands together, you experience sliding friction. When you ride a bike, you depend on the rolling friction of the tires. And skydiving depends on the fluid friction between the air and hopefully the parachute opening to slow the person down. Friction is used in everyday life. Sometimes you want a great deal of friction, like the gripping power of tires, and other times, like when you go skating, you want low friction so that you can glide across the ice. Most land vehicles rely on friction for acceleration and changing direction. And fluid friction contributes to aerodynamic drag, which is the resistance to forward motion, so that race cars are sleek and aerodynamic to reduce this fluid friction and go faster. Your shoes provide friction, which allows you to move forward. Also, if the friction is really low, like on ice, it's challenging to drive a car because of the low friction. Skis on snow work the same ways, and the low friction allows the ski to glide quickly over the ice or snow. Sandpaper, on the other hand, works because its surface increases the amount of friction. Wax is applied to surfboards to increase friction and grip, and you put oil on chains and gears to decrease friction, and this allows the chain to work more efficiently. And finally, the wheels on this skateboard create a great deal of friction and allows these people to go. Okay, now as you watch here in these examples that the two kind of surfaces are present and friction is required for the smooth motion of the body, otherwise the body can slip. Contact and two bodies, minimum two bodies are required. So आपको मैंने kind of forces जो बताए थे इसमें एक बताया आपको gravitational force. तो फ्रिक्शनल फोर्स अटैच्ड फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर पाता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है फ्रिक्शनल फोर्स की एग्जिस्टेंस में. दिस वन इज़ द बॉडी, दिस वन इज़ अर्थ. ग्रेविटेशनल फोर्स में हम अर्थ को ले सकते हैं या किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ को ले सकते हैं. सो अर्थ अट्रैक्टिंग द बॉडी टूवर्ड्स इट्स सेंटर, सो दैट इज़ कोरस्पॉन्डिंग टू द gravitational force. But here the bodies are not in contact with each other. That means the frictional force is not acting between the bodies because there is no contact. The surface to surface contact is not present here. Clear? So first one, gravitational force. Second, if you are talking about electrical force or magnetic force, then in electrical force, positive and positive charge, they are having some kind of repulsive force, and positive and negative charge, they are some kind of attractive force. Then in that case, no contact between the charges.
is required. So that means what? Here there is no frictional force. Okay, static charge जब rubbing होती है charges की तब frictional force generate होते हैं. So electrical force, that is one of the cause of the frictional force. It is the cause, but remember this, in electrical force frictional force is not present if the bodies are not in contact with each other. Clear? Now come to the magnetic force, that one north pole and south pole gets attracted with each other. That means there is a presence of magnetic force, but because again the bodies are not in contact with each other, that means what? There is no frictional force. So frictional force के जितने भी एग्जाम्पल्स आप देखोगे उसमें क्या रिक्वायर्ड है कि जो सरफेसेस हैं, टू बॉडीज़ होनी चाहिए मिनिमम, और उनकी सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आनी चाहिए, जैसा कि अभी आपने वीडियो क्लिप में देखा. क्लियर है ये? अब देखते हैं बेसिक क्या होता है सरफेस का. एक एग्जाम्पल, जैसे ये रफ रोड है, यहाँ पर कोई व्हीकल मूव कर रहा है. दिस वन इज़ अ व्हीकल, ये रफ रोड पे मूव कर रहा है. ये एक स्मूथ रोड है और इस पे कोई व्हीकल मूव कर रहा है. ठीक है, एक व्हीकल है जो रफ रोड पे मूव कर रहा है. दिस वन इज रफ रोड एंड दिस वन इज स्मूथ रोड. So out of these two cases, you can easily observe, you can easily judge that in the first case, frictional force is more. In the second case, frictional force is less because of the roughness of the body. Here there is a contact between the wheel and the road surface. There is a contact. Clear? So first case में frictional force ज़्यादा है और second case में frictional force कम है. आपको कौन सी रोड रिक्वायर्ड है? स्मूथ रोड. ठीक है, तो सबसे पहले तो एक ये कंक्लूजन निकल के आया कि एक सरफेस और उसके कॉरस्पॉन्डेंस में एक बॉडी, इसी को मैंने एक व्हील ले लिया, आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हो. तो ये जो व्हील है, ये जो बॉडी है और ये सरफेस, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आई हैं, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसमें. और फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करेगा कि ये जो सरफेस है, ये जो आपने रोड ली थी यहाँ एग्जाम्पल में, इस रोड की सरफेस कैसी है, रफ़ है कि स्मूथ है, यानी मटेरियल पर डिपेंड करती है सरफेस, यानी सेकंड बॉडी या फर्स्ट बॉडी के नेचर पर भी डिपेंड करती है. जो व्हील लिया जाता है वो रबर का बनाया जाता है. अगर वही व्हील आयरन का हो तो क्या होगा? स्लिपरी नेचर. ठीक है, व्हील अगर आयरन का यूज़ हो रहा है तो स्लिपरी नेचर हो जाएगा. ट्रेन का व्हील आयरन का होता है और उसका जो ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक होता है, वो भी आयरन के ट्रैक होते हैं. तो आयरन एंड आयरन के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया. ठीक है, यहाँ पर जो सरफेस ली जाती है, रोड की सरफेस, वो रफ़ है अगर, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है. अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा. अगर आप एक शोरूम में जाते हो तो किसी भी फीमेल के लिए हील पहन के चलना, इट इज़ समवॉट डिफ़िकल्ट टास्क. ओके, वैसे तो चलो यूज टू हो चुके हैं, दैट डजेंट मीन फीमेल्स भी हील्स पहन करके शोरूम में ईजिली मूव कर लेते हैं. ठीक है, पॉइंटेड हील की भी वैरायटी आती है, उसमें मुझे डिस्कस नहीं कर रहे हैं. तो हील जो होती है, उस हील के थ्रू भी वो स्मूथ सरफेस पे जब मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया. क्यों? क्योंकि सरफेस का कांटेक्ट कम हो गया. हील इज़ पॉइंटेड, और पॉइंटेड हील में, ये पॉइंटेड हील है, इस पॉइंटेड हील में जो शोरूम की सरफेस होगी, ठीक है, जो शोरूम की सरफेस होगी उससे कांटेक्ट एरिया कम हो गया. तो एरिया ऑफ कांटेक्ट पर भी डिपेंड करती है फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फ्रिक्शनल फोर्स के. ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि फ्रिक्शनल फोर्स के लिए दो बॉडीज रिक्वायर्ड है. वन इज़ द सरफेस, सेकेंड इज़ द बॉडी. ठीक है, विच इज़ मूविंग ओवर द सरफेस. एंड सेकेंड थिंग दैट जो सरफेस है उसका नेचर, वो उस पर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होगा. तो कांटेक्ट क्या होता है? द टू सरफेस एट दैट पॉइंट वेयर दे टच्ड ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट. क्लियर? और कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? नाउ आई एम कमिंग टू द टॉपिक, बेसिक टॉपिक हियर, कांटेक्ट फोर्स. सो व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स? द फोर्स, द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेस. तो ये टेंजेंशियल फोर्स, ये रफ सरफेस है, इसके बेसिस पर हम टेंजेंशियल फोर्स निकाल सकते हैं. दिस वन इज कांटेक्ट फोर्स. ओके,
So you can say that the contact force is what? It is the force, tangential force acting between the point, acting at the point of contact between the two surface. मैथ्स के अकॉर्डिंग्स में जब आप दो बॉडीज़ को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये टेंजेंट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट निकालना हो तो सरफेस के बेसिस पे टेंजेंट निकाली जाती है। यहाँ पर भी आपने टेंजेंट निकाली है सरफेस के बेसिस पर। इट इज़ अ रफ सरफेस, सो कॉन्टैक्ट फोर्स इट शुड नॉट बी एग्जैक्टली अलॉन्ग विद द सरफेस। जबकि इस केस में देखो, अगर स्मूथ रोड है तो कॉन्टैक्ट फोर्स एग्जैक्टली सरफेस के अलॉन्ग विद आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सरफेस के अलॉन्ग विद नहीं आ रहा है, सरफेस से यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। ध्यान से देखना है, इसको जूम करके देख लेना अपने वीडियो में, इसको जूम करके देखना है इस फिगर को, क्या हो रहा है। दैट कॉन्टैक्ट फोर्स is acting in between the point, in between the two surface at the point of contact, first thing, and the contact force is making some angle theta from the horizontal line. Contact force के दो component होते हैं, this is contact force, इसके हम दो component ले सकते हैं, having two component. First one, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो रिजोल्यूशन आपने पढ़ा था वेक्टर, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी तो रिजोल्यूशन यहाँ पे वर्क करेगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी में आपने पढ़ा है कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एंड सेकेंड वन इज वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो जाता है, इसीलिए इस फिगर से बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप बच्चों से कि ये जो जब मैं लाइव क्लास लेती हूँ क्लासरूम में तो मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है क्लास में एक्सप्लेन करना, बट जब मैं वीडियो बना रही हूँ या कोई भी टीचर जब वीडियो बना रहा होता है तो उस टाइम पे थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क ये आता है कि हमने वीडियो बनाना भी होता है, उसे अपलोड करके उसका डिस्क्रिप्शन एवरीथिंग वी हैव टू डू। सो इस में अगर आपको कहीं भी किसी पॉइंट पे नहीं समझ में आता है या आप कमेंट करोगे तो मुझे भी एक आइडिया लग जाएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर कंपेनियन सो दैट ये जो 11th फिज़िक्स का टॉपिक है जो सिंपल तरीके से मैं समझा रही हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए और उनको भी समझ में आ पाए, ठीक है। तो आप इसे शेयर कीजिए वीडियो को और कमेंट कीजिए। ओके, सो कम टू द पॉइंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ये कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए। ऑब्वियसली अब इसी फिगर को देखो, इस फिगर में ये जो फोर्स लग रहा था कॉन्टैक्ट फोर्स, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल लाइन की साइड में होगा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एंड द वर्टिकल कंपोनेंट नॉर्मल टू द सरफेस, सो दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पर नेमिंग आती है, ठीक है। जो आप फोर्सेस बहुत जनरली यूज़ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स में दिया हुआ होता है, वो फोर्स की नेमिंग यहाँ पर आ रही है। फर्स्ट फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि मोशन के अलॉन्ग विद है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है, नो डाउट, ठीक है। यहाँ पर जो मोशन की लाइन में है, अलाइनमेंट में है, दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स एंड द वर्टिकल कंपोनेंट जो सरफेस के नॉर्मल में आ रहा है इसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। तो आपको ये समझ में आया कि नॉर्मल फोर्स बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में यूज़ हो रहा होता है, दैट फोर्स इज एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस, यानी आप परपेंडिकुलर बना देते हो, वो आता कहाँ से, ओरिजिनेशन कहाँ से है। एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स तभी आता है जब दो बॉडीज़ का कॉन्टैक्ट होगा, इसीलिए मैंने आपको यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स की स्टार्टिंग इस पॉइंट से कराई है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कॉन्टैक्ट क्यों रिक्वायर्ड है। सो इफ़ द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट देन देयर इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द component of that contact force, there are two component, one component is called frictional force and the second component is called normal force। तो ये बेस है ओरिजिनेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स का, जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होना है अभी आपका, ठीक है, क्लियर है ये। अब और कौन से फोर्स न्यूमेरिकल में यूज़ होते हैं? एक फोर्स यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं टेंशन, न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ होना है अभी। ये
जो आपका पुली वाला केस है ना, हर जगह पे आप यूज़ करोगे टेंशन। ये जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, दिस वन इज़ अ पुली। फिर यहाँ पर एक पुली लगी हुई है, ये सस्पेंडेड है, यहाँ से एक स्ट्रिंग गई, दिस वन मोर पुली, यहाँ पर हैंग हो गया, तो ये फाइनली सस्पेंशन पॉइंट और ये पुली का केस हो गया। तो इसमें आप देख रहे हो कितनी पुली लगी हैं, 1 2 3। आप टेंशन को टी से रिप्रेजेंट करते हो, फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हो और नॉर्मल को एन से रिप्रेजेंट करते हो, नॉर्मल फोर्स को। अब यहाँ पे जो टेंशन आती है वो आप देखोगे हमेशा सस्पेंशन पॉइंट की साइड में ही टेंशन ली जाती है। यहाँ पे ये हैंग है तो सस्पेंशन पॉइंट किधर हो गया, पुली की साइड में, ये टेंशन है हमेशा सस्पेंशन पॉइंट, यहाँ पर ये टेंशन हो जाएगी। इधर पुली एक नीचे की साइड में है तो इधर भी एक टेंशन वर्क कर रही है। ये डिपेंड करता है कि स्ट्रिंग सेम लगी है कि डिफरेंट। तो टेंशन इज लिंक्ड विद टू काइंड ऑफ थिंग, वन इज स्ट्रिंग एंड सेकेंड इज स्प्रिंग। स्प्रिंग का भी केस होता है, लाइक ये हैंगिंग स्प्रिंग है और यहाँ पर एक बॉडी हैंग कर दी गई, तो यहाँ पर भी टेंशन एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द सस्पेंशन पॉइंट। हमेशा सस्पेंशन पॉइंट की तरफ ले लेते हैं कि टेंशन है। तो ये जो टेंशन वर्ड है, ये थर्ड काइंड ऑफ फोर्स जो कि न्यूमेरिकल में यूज़ होना है, वो होता क्या है वो आपको यहाँ पर ही समझ लेना चाहिए अंडर द टॉपिक फ्रिक्शन। स्ट्रिंग और स्प्रिंग, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में से एक स्मॉल जो आप जिसको आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहते हो, जैसे कि आपने जी का प्रैक्टिकल किया था, पेंडुलम का प्रैक्टिकल किया था। एंड स्प्रिंग यू नो दैट यहाँ पर स्प्रिंग जो होता है उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होता है, वो अभी आप आगे भी पढ़ोगे, वर्क एंड एनर्जी में स्प्रिंग का टॉपिक है। और एक चैप्टर आगे है जो काइंड ऑफ सरफेस को बताता है। अभी मैंने बताया कि कॉन्टैक्ट फोर्स सरफेस के लिए रिक्वायर्ड है, तो बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स में जो आपका सॉलिड बॉडीज आएंगी वो आपको बताएंगे उसमें कि यहाँ पर स्प्रिंग जो काइंड ऑफ सरफेस होती है वो कैसी होती हैं। तो अभी तो स्ट्रिंग और स्प्रिंग जो आना है वो आपका वर्क एंड एनर्जी में आ जाएगा ये टॉपिक, क्लियर। एक और पॉइंट बताना था कि फ्रिक्शनल फोर्स सॉलिड, दो सॉलिड्स के बीच में, यानी एक सॉलिड सरफेस दूसरी सॉलिड सरफेस के बीच में लगता है, एज वेल एज बाइंड फोर्स जो कि सॉलिड और लिक्विड में लगता है। ये सारे के सारे फोर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो मोशन को रेस्ट्रिक्ट करता है। सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच अपोजेज द मोशन, ठीक है। जैसे जो पानी की लेयर्स होती हैं, जो किसी भी लिक्विड की लेयर्स होंगी, उनके बीच में भी एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है, एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज नेम्ड एज विस्कस फोर्स। इसके बारे में भी आपका बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में दिया हुआ है। तो आपको 1 बाय 1 टॉपिक्स आएंगे, वो टॉपिक का थोड़ा थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ कि ये यहाँ पर ही फिनिश नहीं हो जाता, ये इसी टॉपिक को कनेक्ट किया गया है आपकी नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है। वो भी आप पढ़ोगे डिटेल में अच्छे से। तो टेंशन जो आपका न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, टेंशन स्ट्रिंग के केस में या स्प्रिंग के केस में होती है जहाँ सस्पेंशन पॉइंट होता है। सस्पेंशन पॉइंट क्या है, जहाँ जिस सपोर्ट से स्ट्रिंग या स्प्रिंग, ये जो सपोर्ट है जहाँ से स्ट्रिंग या स्प्रिंग, दिस वन इज स्ट्रिंग एंड दिस वन इज स्प्रिंग, ये हैंग्ड होते हैं, इसको हम कहते हैं कि दैट इज़ अ सस्पेंशन पॉइंट, ओके। और जो टेंशन होती है वो हमेशा सस्पेंशन पॉइंट की तरफ एक्ट कर रही होती है। क्यों? क्योंकि ये मोशन को अपोज कर रही है, यानी अगर बॉडी नीचे की साइड जा रही है तो टेंशन ऊपर की साइड आ जाएगी। सो स्प्रिंग के केस में इसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। दिस ऑल्सो अपोजेज द मोशन ऑफ बॉडी। तो ये भी एक काइंड का क्या है, दैट इज़ द काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर ये भी टेंशन भी आप न्यूमेरिकल में जब आप यूज़ करोगे तो फिर टेंशन भी यूज़ करोगे। इंक्लाइंड प्लेन के केस में भी टेंशन का न्यूमेरिकल आएगा। यहाँ पर एक पुली है और यहाँ एक बॉडी और ये दूसरी बॉडी यहाँ हैंग्ड है, तो इसमें आपको टेंशन भी इंक्लूड करना पड़ेगा इन टर्म्स में, जो कि यहाँ इस पुली से के थ्रू दो बॉडीज़ हैंग्ड है। तो 3 काइंड के फोर्स हैं जो न्यूमेरिकल्स में अभी यूज़ होने वाले हैं, पुली की न्यूमेरिकल हो या कुछ भी हो। आई थिंक कि ये तीनों काइंड के फोर्सेस आपको क्लियर हो गए होंगे। टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सक्यूज मी।
First one is static friction. Second one is kinetic friction. जिसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं. And third one is rolling friction. Okay, so these are the three kind of frictions that act in accordance with the state of a body. अब स्टेट यहाँ पे ये सब लिख लिया है ना आपने, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल कंपोनेंट, टेंशन. टेंशन मैंने आपको बता दिया है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो कि हमेशा सस्पेंशन पॉइंट की तरफ एक्ट करता है. ठीक है, चलो स्टैटिक फ्रिक्शन. अब ये सरफेस और ये बॉडी, ठीक है, ये बॉडी मूव करना स्टार्ट कर रही है, तो इस मूव करने में अप्लाइड फोर्स ये है, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है. फ्रिक्शन को हमेशा स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. सो फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, दिस वन. ठीक है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ. यानी व्हेन अ बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट फ्रॉम इट्स रेस्ट स्टेट टू मोशन स्टेट, देन द force, the frictional force which is acting in between the body and the surface is called static friction. यानी बॉडी की रेस्ट से स्टेट से मोशन स्टेट के बीच का जो टाइम लैप्स होता है, टाइम गैप होता है, उस टाइम पे जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. स्टैटिक वर्ड अपने आप में क्लियर कर रहा है. स्टैटिक मीन्स क्या होता है, रेस्ट. काइनेटिक मीन्स मोशन. रोलिंग आपको पता है, दैट रोल डाउन द बॉडी. तो उसी के बेसिस पर ही ये फ्रिक्शनल फोर्सेस के टाइप की नेमिंग दी गई है. अब यहाँ पर आप ये देखो, तो ये जो बॉडी है अभी इनिशियली एट रेस्ट में है, और ये इस पर जब फोर्स लगना शुरू होगा तो ये मूविंग स्टेज में आएगी. अभी आई नहीं है. इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप है, जहाँ ये रेस्ट से मूविंग स्टेट में आने वाली है, उस टाइम पे जो अप्लाई किया जा रहा है उसके ऑपोजिट में जो फोर्स लग रहा है, दैट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स. कैसे, किस तरीके से इसको समझ सकते हो? देखो, आपको कहा जाए कि ये एक ब्लॉक दे दिया गया और आपसे कहा गया कि ये एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग से खींच करके इस ब्लॉक को, ये आप हो, ठीक है, और इस स्ट्रिंग से खींच करके आपको इस ब्लॉक को आगे ले जाना है स्लाइड कराते हुए. ठीक है, तो आप सबसे पहले आप फोर्स लगाओगे तो वो नहीं हिलेगा अपनी जगह से, सपोज ब्लॉक. तो जिस सिचुएशन में आपने एक पर्टिकुलर लिमिट तक का फोर्स लगाया, जिससे कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद वो फोर्स, वो जो ब्लॉक था, वो मूव करना शुरू किया, तो जितना आपने अप्लाइड फोर्स लगाया वो एक्चुअल में फ्रिक्शन फोर्स को लिमिटिंग वैल्यू दे रहा है. यानी मिनिमम इनिशियल अप्लाइड फोर्स दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्रिक्शनल फोर्स. तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एफएस, एस मीन्स स्टैटिक, एफ मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, लिमिटिंग अप्लाइड फोर्स जिसे हम कहते हैं. यानी अप्लाइड फोर्स की सबसे कम जो वैल्यू होगी, जो बॉडी की स्टेट, ये इक्वल का साइन ये ऐसे ही लगा हुआ है और ये ग्रेटर का साइन है अप्लाइड फोर्स का, तो ये जो इक्वल की वैल्यू है वो कौन सी है, लिमिटिंग. ये है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स. यानी ये मिनिमम लिमिटिंग वैल्यू है, यानी इतनी मिनिमम लिमिट रिक्वायर्ड है फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए. इफ़ द अप्लाइड फोर्स इज मोर देन दिस वैल्यू, देन द बॉडी चेंज द स्टेट्स फ्रॉम रेस्ट टू मोशन. अदरवाइज इफ द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू, मीन्स यहाँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन की इक्वल है, तो बॉडी हिलेगी नहीं, तब तक बॉडी रेस्ट में ही रहेगी. सो दैट इज़ अ लिमिटिंग वैल्यू. यानी अप्लाइड फोर्स की मिनिमम वैल्यू हो सकती है इक्वल टू द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और उससे ग्रेटर. ये डिपेंड करता है कि बॉडी, जो आपकी अप्लाइड फोर्स एजेंट है, वो कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू इज द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू. क्लियर है ये? तो दिस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स वैल्यू इज इक्वल टू, ये पहले तो प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स ऑफ व्हाट, जो कांटेक्ट फोर्स आया इन दोनों फ्रिक्शनल फोर्स के, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, जो मैंने पहले अभी आपको बताया था. देन वी कैन राइट इट हैज एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस एन, दैट इज म्यू एस एन. तो
फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इतनी हो गई, ठीक है। म्यू एस एन, म्यू क्या है, म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो एफ एस यानी फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट शुड बी इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब ये म्यू एस जो है ये कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट किस बात पे डिपेंड करता है कि सरफेस कैसी है। ज़्यादा रफ सरफेस है तो ऑब्वियसली ब्लॉक को मूव कराने के लिए यानी मूव स्ट्रेस्ड स्टेट से मोशन स्टेट में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी मिनिमम वैल्यू ज़्यादा होगी, अप्लाइड फोर्स की मिनिमम वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ग्रेटर होगी। एंड इफ़ द surface is smooth, then it is sure that in that case the applied force value is less. क्लियर। जो बड़े से बड़ा ब्लॉक हो, अगर सरफेस जो होती है जिस पे ब्लॉक रखा हुआ है कॉन्टैक्ट सरफेस, वो अगर स्मूथ है देन द ब्लॉक कैन ईजिली मूव विद लेसर वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स। बट इफ द सरफेस इज रफ देन more applied force is required to change the state of that block from rest to मोशन। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट फैक्टर नंबर 1 इज द मटेरियल ऑफ सरफेस, डिपेंडेंट फैक्टर ऑफ व्हाट, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको इसमें हम ग्रेटर देन ये जो ये साइन है यहाँ पे, इसको ये साइन भी यूज़ होता है, दैट इज़ अप्लाइड फोर्स दैट शुड बी इक्वल टू म्यू एस एन। म्यू एस इज कोफिशिएंट एंड इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द सरफेस, यानी नेचर ऑफ सरफेस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नेचर ऑफ सरफेस, ठीक है। एंड द सेकेंड फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है, यानी कि कांटेक्ट कैसा है, यानी अगर कोई ब्लॉक कांटेक्ट कैसा है ये किस बात पे, अभी देखो मैं इसको इलैबोरेट थोड़ा सा कर देती हूँ। अगर कोई ब्लॉक है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया वो मटेरियल सरफेस पर आ रहा है, ठीक, उसको स्लाइड करा रहे हो, और अगर उसी ब्लॉक को आप हल्का सा टिल्टेड कर दो और फिर उसको ले जाओ, तो उस कंडीशन में दोनों में चेंज आ जाएगा। यानी यही ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक का पूरा सरफेस एरिया इस सरफेस से जो जिस सरफेस पे आप मूव कराओगे इस ब्लॉक को उस पे पूरा कांटेक्ट में आ रहा है, तो मिनिमम अप्लाइड फोर्स कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये आप बताओगे इस केस में। सेकेंड इज दिस वन केस, ये ऐसे रखा हुआ है ब्लॉक और अब इसे स्ट्रिंग के थ्रू ऐसे घुमा रहा है ये पर्सन, ठीक है। तो उस केस में आप देखो तो ऑब्वियसली बॉडी को ऐसे अप करके मूव कराना ज़्यादा इजी है, जस्ट लाइक द केस ऑफ द वाइपर जो स्लाइड डाउन करते हैं वो उसका कम से कम मिनिमम सरफेस एरिया आता है। तो नॉर्मल फोर्स पर भी डिपेंड करता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नॉर्मल फोर्स एज वेल एज मटेरियल ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगी। क्लियर है। सो आई होप दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज क्लियर टू यू। Now come to the dynamic frictional part. Second one is dynamic friction. Dynamic friction इसी को हम कहते हैं sliding friction. Okay. स्लाइडिंग फ्रिक्शन रिप्रेजेंटेड बाय Fk। डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन भी वर्ड दिया गया था, काइनेटिक फ्रिक्शन, एवरी वर्ड्स आर सेम। डायनेमिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑल थ्री आर सेम। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो किस स्टेट में वर्क कर रहा होता है, जब बॉडी मूव कर रही है इनिशियली उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा होता है, यानी इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो, बॉडी इज मूविंग, इन दैट कंडीशन द अप्लाइड फोर्स मिनिमम वैल्यू इज corresponding to kinetic friction.
ओके, एफ अप्लाइड। तो अप्लाइड फोर्स की मिनिमम वैल्यू को हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे, कब? जबकि बॉडी इनिशियली मूव कर रही थी। यानी आप ऐसे ले लो कि कोई कार स्टार्ट करते टाइम पे जब आपने स्टार्ट की तो उस समय जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू थी वो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करी, लेकिन जब स्टार्ट होकर के आगे मूव करना शुरू किए तो उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था। अब आप ये कहोगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन की एज सच क्या रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि बॉडी तो ऑलरेडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन तो ओवरकम हो गया। सो स्लाइडिंग जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन था उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ इसको क्लियर करने के लिए। द फर्स्ट केस इज व्हाट, दैट अ कार इज मूविंग ऑन वेरी वेरी रफ सरफेस। ठीक है, तो उस समय मोशन की जो स्पीड होगी वो ऑब्वियसली बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, दैट इज corresponding टू द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। Now come to the case that is the road is comparatively smooth as compared to the previous case. First case very rough surface and second case is comparatively smooth. So second case में obviously जो kinetic friction होगा वो पहले वाला जो फ्रिक्शन था, पहला केस था, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। यानी जो मूव कर रहा है व्हीकल, जो कार मूव कर रही है उस कार के मोशन की स्पीड कंपेरेटिवली ग्रेटर होगी क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कम हो चुका है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल काइनेटिक यानी मोशन के टाइम पर होता है, बॉडी की मोशन के टाइम पे ओवर द सरफेस, बट स्टिल द नेचर, बिकॉज द मोशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, दैट इज़ वाई देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बट थ्रू आउट द मोशन नहीं रहता। मोशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ पर आपका एक इनिशियल मोशन स्टार्ट हुआ है बॉडी का, उस कंडीशन तक ही काइनेटिक फ्रिक्शन रहता है। फिर उसके बाद अप्लाइड फोर्स इतना बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज इट इज़ द इंजन फोर्स, इतना इंक्रीज़ कराया जा सकता है कि ऑब्वियसली इसको ओवरकम किया जा सकता है काइनेटिक फ्रिक्शन को। ठीक है, सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द मोशन टाइम, दैट इज़ द काइनेटिक फ्रिक्शन। दैट मीन्स वी कैन राइट दैट एफ के दैट शुड बी इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ये फॉर्मूला आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन का। एंड अगेन इट इज नॉर्मल फोर्स, म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एंड ऑब्वियसली डिपेंडिंग फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे जिस पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग फैक्टर्स, नंबर 1, पहला केस जिस पे काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ सरफेस, जहां पर बॉडी रोल कर रही है। एंड सेकेंड केस इज द स्पीड ऑफ द बॉडी। ये स्टैटिक फ्रिक्शन में नहीं था बट काइनेटिक फ्रिक्शन में है। अगर बॉडी बहुत स्लो मूव कर रही है, कार कोई बहुत स्लो मूव करेगी, तो ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन ग्रेटर हो जाएगा। जैसे मैंने 2 केसेस बताए थे, एक बहुत रफ सरफेस और एक स्लाइडिंग रफ सरफेस। तो दोनों में जो कार मूव कर रही होगी उन दोनों केसेस में डिफरेंस है। ठीक है, फर्स्ट केस में इन स्पाइट ऑफ द अप्लाइड फोर्स ग्रेटर वैल्यू दैट द मोशन ऑफ द कार इज स्लो, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज एप्लीकेबल ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। हमेशा बॉडी के मोशन के ऑपोजिट लगता है, अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। इस सेकेंड केस में काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई क्योंकि सरफेस थोड़ी सी स्मूथ हो गई है एफ के, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स एफ अप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड केस में क्या होगा, ये फर्स्ट केस है, ये सेकेंड केस है। सेकेंड केस में काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कंपेरेटिवली लेसर है बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ सरफेस। एंड स्पीड अगर हम दोनों में देखेंगे, यहाँ पे स्पीड अगर थोड़ी और स्लो कर दें, इंजन की स्पीड को हम बहुत ज़्यादा, यानी इंजन ऑयल ज़्यादा यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, इंजन की स्पीड को अगर हम और स्लो कर दें तो क्या हो जाएगा, उससे में इंजन ऑयल हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, व्हीकल की स्पीड को हमने और स्लो कर दिया है, तो ऑब्वियसली काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी स्पीड पर भी डिपेंड करता है बॉडी की स्पीड कितनी है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन उस समय और बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ वाई द डिपेंडिंग फैक्टर ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज नेचर ऑफ सरफेस एंड स्पीड ऑफ द बॉडी। अच्छा, आप दोनों केसेस में ये देख लेना कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन बताया मैंने, इन दोनों केसेस में जो आपका कॉन्टैक्ट सरफेस होती है उस पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करता है? नॉर्मल फोर्स पर, नेचर ऑफ सरफेस पर एंड स्पीड ऑफ द बॉडी पर, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये डिपेंडिंग फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और
पॉइंट है जो इम्पॉर्टेंट है, दैट म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होती है हमेशा, ये ध्यान रखना। म्यू के बहुत मिनिमम होता है क्योंकि उसमें बॉडी स्पीड में होती है, म्यू एस ग्रेटर होता है, ठीक है। सो द coefficient of static friction is more and coefficient as compared to the coefficient of kinetic friction. This point is important and you can note it down. Now third case is rolling friction. Third case is rolling friction. तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब अभी तक हम क्या ले रहे थे कि ये जो बॉडी है ये सरफेस पर है, अब ये बॉडी सरफेस पर नहीं है, ये बॉडी एक दूसरी रोलिंग बॉडी पर है। ये दिस वन इज द मूविंग बॉडी एंड दिस वन इज सरफेस, ठीक है। तो अगर ऐसा केस हो कि बॉडी रोलिंग सरफेस पर आ गई, यानी रोल कर सकती है, ऐसी सरफेस पर है जहाँ पर रोल कर सकती है बॉडी, ये केस भी हो सकता है। दूसरा ऐसा केस भी हो सकता है कि इंक्लाइंड प्लेन ले लिया जाए, तो उस कंडीशन में भी सरफेस तो ऐसी प्लेन हो गई पर उसमें क्या हो जाएगी, बॉडी रोल करते हुए नीचे गिरेगी, ठीक है। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन, यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा होगा। तो ये जो केस है अभी आपको जो मैंने क्लिप दिखाई थी वो बॉल बेयरिंग वाला केस, किचन की जो फर्नीचर्स होते हैं, किचन मॉड्यूलर किचन जो बनती है वो बॉल बेयरिंग की बेसिस पर ही बहुत स्मूथ डोर ओपनिंग डोर क्लोजिंग, ड्रॉर ओपनिंग ड्रॉर क्लोजिंग, ये सारा बहुत स्मूथ हो जाता है। अगर आप देखोगे तो वो जो कॉर्नर्स में स्लाइड्स लगे उसमें बॉल्स हैं अंदर, तो उसे हम कहते हैं बॉल बेयरिंग। जो बॉल्स की वजह से क्या हो जाता है कि मोशन स्मूथ हो जाता है। तो ये जो बॉल बेयरिंग का केस है यहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन है क्योंकि दो बॉडीज़ एक दूसरे के ऊपर रोल कर रही हैं यहाँ पर, ठीक है। दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन में भी सिंपल आप इसे म्यू आर से रिप्रेजेंट करोगे, ये रोलिंग फ्रिक्शन है। इट इज़ वेरी लीस्ट, वेरी वेरी लेस देन म्यू के एंड म्यू के इज़ लेस देन म्यू एस। तो ये केस होता है रोलिंग फ्रिक्शन का। दैट मीन्स कि जब बॉडी रोल कर रही है तो ऑलरेडी मोशन की स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है, रोल करते समय। सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपको किसी कार्टन को, किसी बड़े कार्टन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना है तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि स्लाइडिंग, जहाँ पर आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और दूसरा केस है उसको रोल करते हुए ले जाना, और तीसरा केस है कि उसको किसी इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू पास ऑन करा देना, ठीक है। तो ऑब्वियसली इंक्लाइंड प्लेन के थ्रू पास ऑन कराना ईजी है, ठीक है। लाइक द केस ऑफ द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में आपने जो बैग्स आते हैं जहाँ आपके वहाँ पर चैनल्स जो बने हुए होते हैं, उन चैनल्स पे अगर आप देखो तो क्या है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। वहाँ पर बैग्स आ रहे हैं और बैग रोल करते हुए सिंपली इंक्लाइन प्लेन से रोल करते हुए सिंपली यहाँ पर बैग चैम्बर में आ जा रहे हैं, बैग एरिया में आ जा रहे हैं, लगेज एरिया में आ जा रहे हैं, जहाँ से आप अपना बैग ले जा रहे हो। तो वो जो मूव कर रहा है वो क्या है, नीचे एक बेल्ट लगी है और उसके ऊपर रोलिंग फ्रिक्शन है जिसकी बेसिस पे मोशन ईजी हो गया है। लाइक द केस अगेन द सेम एग्जाम्पल ऑफ एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में अगर आप देखोगे तो जो एलिवेटर, हॉरिजॉन्टल एलिवेटर है, वो बॉल बेयरिंग के केस पे ही चल रहे हैं। नीचे एक व्हील लगा हुआ है जो ऊपर पैनल को मूव करा रहा है, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बॉल बेयरिंग, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन को क्या करता है कि दैट इज़ वाई रोलिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज लीस्ट बिकॉज इट स्मूथ इन द मोशन, इट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ मोशन, क्लियर। सो that is called a rolling friction, and rolling friction is about to negligible. It is very least out of the three kind of forces and it can be negligible. बहुत कम होता है rolling friction. Friction is necessary evil. तो सबसे पहले तो फ्रिक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहला केस है ल्यूब्रिकेंट यूज़ करके। अगर हम ल्यूब्रिकेंट लगा देते, जैसे फ़ैन है, फ़ैन की स्पीड जब स्लो हो जाती है ऑयल डाला जाता है, ये या कोई डोर है, डोर अगर वॉइस कर रहा है, साउंड निकल रही है इसके मोशन में, जब डोर टर्न कर रहा है तो उस केस में अगर साउंड निकल रही है तो क्या करते हैं, एक ऑयल डाल देते हैं। ऑयल इज़ जस्ट लाइक द लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट मशीन में डाले जाते हैं। मशीन्स, कोई भी मशीन्स में लुब्रिकेंट का यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ किया जा सके, ठीक है। द फर्स्ट केस। सेकेंड केस इज़ द बॉल बेयरिंग।
बॉल बेरिंग क्या होता है, लाइक अगर आप देखो तो बॉल बेरिंग का एक एग्जाम्पल मैं आपको फिर से किचन का देती हूँ। किचन में ड्रॉर लगे हुए होते हैं, ये कैबिनेट है, इसके पास यहाँ बाहर की साइड में एक ड्रॉर है जो कि मूव कर सकता है, बाहर आ सकता है, ऐसे बाहर आ जाता है, यहाँ पे नॉट लगा हुआ होता है। अगर यहाँ पे बॉल बेरिंग की जगह पर एक वुडन बेस अंदर लगा देते हैं तो जब आप ड्रॉर अपनी साइड में स्लाइड करो तो क्या होता है, आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा होता है। और अगर वही मॉड्यूलर किचन है और अंदर वो जो साइड में ऐसे देखा है सिल्वर प्लेटिंग टाइप का होता है, एल्यूमिनियम प्लेटिंग या सिल्वर प्लेटिंग टाइप का लगता है आपको, यहाँ पर एक चैनल बना हुआ होता है, उस चैनल के अंदर आप देखो तो बीड्स पड़े हुए होते हैं। ये बीड्स क्या करते हैं, जब आप इसको ड्रॉर को अब ओपन करोगे तो ये बीड्स रोल कर जाएंगे, जब रोल कर जाएंगे तो जो ड्रॉर है ईजिली बाहर आ जाएगा। तो ये बॉल बेरिंग का केस होता है, यानी कि पहले केस में आप स्लाइड करा रहे थे तो फ्रिक्शन ज़्यादा था, जब आपने बॉल बेरिंग्स लगा दी तो फ्रिक्शन कम हो गया और स्मूथ मोशन हो गया। वही मॉड्यूलर किचन में यूज़ होता है या किसी भी काइंड की ड्रॉर में यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंड केस, टू मिनिमाइज द फ्रिक्शनल फोर्स, दीज आर द केसेस टू मिनिमाइज द फ्रिक्शनल फोर्स। By lubricant, second is ball bearing. Okay, so that is all for today's lecture, and next time I will cover up the topic banking of road, and in this there are 3 cases. I think that out of 3 cases 1 case is having the 2 further case, so we will discuss all that cases. So revise the syllabus, and yes, comment over my video and share it to your companion and friends. Thank you.